Shifting focus now to further information that is coming in. Delhi and the entire NCR region are in the grip of the harshest cold spell of the season, with temperatures plunging to a record low of 3 degrees Celsius during the night of January 10th and 11th, prompting the India Meteorological Department to issue a yellow alert for January 11th and 12th. Dense fog and cold wave conditions have severely disrupted daily life, with visibility at the Indira Gandhi International Airport dropping to just 50 meters at one point. While cold winds of around 15 kilometers per hour have made the chill feel even more intense, the IMD has classified the situation as a severe cold day and warned that biting cold and fog will persist over the next 2 days, even as air quality remains poor across the region. Some relief is expected from January 13th, when temperatures are forecast to gradually rise, with warmer conditions likely by midweek. I have my colleagues joining me from all across the Delhi NCR. I have Brian Thomas, who is live with us from Kautilya Marg, Ali Khan from Noida, Gulshan Grover joining us from Gurugram, and Anil Chaudhary joining us from Ghaziabad. Firstly, I would like to go across to Brian. Brian, of course, we're seeing a record low temperatures, temperatures hitting as low as 3 degrees Celsius yesterday night. What is the current atmosphere over there where you're standing, and how are we seeing this prevailing cold situation disrupting people's lives? Yes, Brian. Season's lowest temperature at 3 degrees itself, day before yesterday also. Uh, Yes, Medha, please am I go audible? ahead. Yeah, now you're audible. Please go ahead. Yeah, so clearly, yes, yesterday night itself, we saw Delhiites rather, saw the coldest, temperature itself, the season's coldest temperature with 3 degrees also plunging. And not only that, day before yesterday, there was a slight rainfall, and IMD has given a yellow alert for 11th and 12th, and post that temperatures, there would be some kinds of normalcy that would be seen in the national capital. Like you mentioned, yes, the visibility also was a compromise itself in and around the Delhi, the national capital, with the IGI airport also recording below 50 meters. Now we are outside this very AQI monitor also as we are speaking. As the temperature is also going down, you can see that the air quality here also is kind of moderate, but the PM 2.5 and PM 1 and PM 10 are questionable, where you can see PM 2.5 is 194 and PM 10 being 206 itself. But clearly, if you talk about the cold wave also, it still persists in and around the Delhi, in and around the national capital. There have been, today, if you talk about today, more than 80 trains, you talk about Superfast, you talk about Mail Express, they've been all delayed, ranging from 30 minutes to 10 hours. And it's happening for a week now because of the fog possibility. Even today, if you talk about today itself, there have been trains, superfast trains that have been delayed from Howrah to Delhi, from Amritsar to Delhi, from Chandigarh to Delhi. All these trains, all these superfast trains have been seeing major delays. So people, who are traveling via train are facing the major problem itself. Now, even today also at 12 p.m, there is a press conference also scheduled at AIIMS Delhi, to where the doctors will be there, where the panelists will be telling to battle severe cold conditions that is being prevalent in the national capital itself. So clearly, as we are witnessing also, there is smog, there is visibility also being questioned. We talk about the temperatures also dropping for the next 2 days is going to be very crucial in the national capital, because it has the IMD has predicted yellow alert. But again, that is the situation happening. Yesterday also in the morning there was 4.2 degrees, before that there was 4.6 degrees itself, and yesterday night itself it was 3 degrees itself. So you can actually understand how difficult people are facing at this point of time. Now winter vacations also for the kids itself, for the children, have been extended, and there is a 15-kilometer wind also, that is, that this cold breeze also is flowing in around the Delhi national capital, The problem is also where the elderlies are facing the major risk of it. The children are facing the major risk of it, and as a result of that, advisories have been given.
by authorities, by experts, for people to stay indoors, not to go out until and unless it is very necessary. Because at this point of time, when the air quality is also, in 312 at this very place, so air quality is also in the very poor category. There is visibility also becoming a challenge, and especially for the two-wheelers, four-wheelers, they are facing the major problems of it. Especially if we talk about two-wheelers at this cold, traveling via bikes or scooters is becoming a risk also because of the cold wave conditions in and around the national capital. Yes. Absolutely, Brian. Do stay on with us. I also have Ali Khan who is joining me from Noida. Ali, ये नोएडा में इस वक्त क्या हाल है? हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स काफ़ी ठंड भी है और AQI अभी भी पुअर उसमें कैटेगरी में ही आता है। तो इस वक्त नोएडा के बारे में हमें बताइए, क्या वहाँ पर सिचुएशन है, लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं इस ठंड के मौसम से? बिल्कुल, लगातार सर्दी बढ़ी हुई है और साथ साथ पॉल्यूशन का कहर भी देखने को मिल रहा है। लगातार शीतलहर चल रही है जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम आज तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक जाने का अनुमान लगाया गया। वहीं IMD की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है पूरे दिल्ली NCR के लिए, तमाम वेस्टर्न यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट है कि आने वाले दिनों में भी सर्दी और भीषण सर्दी पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं फॉग भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जो इंटेंस जो शहरी इलाके हैं, अंदर के इलाके हैं, उनमें अभी फॉग कंडीशन नहीं है। विजिबिलिटी क्लियर है क्योंकि लगातार धूप निकल रही है दिन के समय में, पर सुबह और शाम के समय में तेज हवाएं चल रही हैं जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते रैन बसेरों का इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। जगह जगह पर रैन बसेरे बसाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं जिनके चलते तमाम आला अधिकारी खुद रात में सड़कों पर निकल रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी खुले आसमान के नीचे ना सोए। तो उसको लेके भी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह पे ऐसी जगहें चिन्हित की गई जहां अलाव की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इतनी सर्दी है लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। राहगीर जहां जहां ज्यादा होते हैं उन जगहों पर चिन्हित करके अलाव की व्यवस्था की गई। वही ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी कॉन्वॉय सिस्टम को लागू कराया जा रहा है, क्योंकि जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उस पर लगातार एक्सीडेंट्स की खबरें आ रही हैं, जगह जगह पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनकी खबरें आ रही हैं। तो उनको लेके भी ट्रैफिक विभाग अलर्ट है। हाईवे अथॉरिटीज अलग अलग काम कर रही हैं कि जिससे वॉक के चलते कोई बड़ा एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट ना हो। तो ऐसे भी तमाम उपाय किए जा रहे हैं। वहीं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। खांसी, जुकाम, नजला, बुखार, ऐसी तमाम जो बीमारियां हैं जो कोल्ड से होती हैं, तो उसके चलते भी जिला अस्पताल में और अन्य OPDs में मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। लोग इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं और लगातार जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस कोल्ड वेव के चलते, और माना जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में भी इस कोल्ड वेव से राहत नहीं मिलेगी। वहीं पॉल्यूशन की बात करें तो आज भी पॉल्यूशन नोएडा में 300 के पार है, और कल की बात करें तो कल 400 के आसपास नोएडा का पॉल्यूशन था। तो लगातार पॉल्यूशन खराब स्थिति में बना हुआ है। बीच में कुछ दिन देखे गए जो पॉल्यूशन मॉडरेट कंडीशन में था, पर अभी तक भी लगातार खराब स्थिति में पॉल्यूशन, और दिल्ली NCR वासी इस खराब हवा को सांस लेने के लिए मजबूर हैं। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस चलते। जी बिल्कुल अली, बने रहे हमारे साथ। आई ऑल्सो हैव गुलशन ग्रोवर जॉइनिंग मी फ्रॉम गुरुग्राम। गुलशन, जैसा कि हम देख रहे हैं येलो अलर्ट भी अब इशू कर दिया गया है IMD के द्वारा। इस वक्त गुरुग्राम में क्या हालात है और वहाँ पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा इस ठंड के मौसम से डील करने के लिए? देखिए, बिल्कुल गुड़गांव भी इस समय कड़ाके की ठंड से गुजर रहा है। इस समय 5 डिग्री न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद ठंडी हवाएं इस समय चल रही हैं। हालांकि सड़कों पर आज कोहरा नजर नहीं आ रहा है, क्योंककि हवा जो है वो काफी तेज जो है गुड़गांव में इस समय चल रही है। और इसको लेकर जो प्रदूषण का स्तर है वो भी फिलहाल 264 जो है वो दर्ज किया जा रहा है, यानी 264 अभी भी ठंडी हवाओं के चलने के बाद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर है। हालांकि गुड़गांव की जनता इससे पहले तिहरी मार झेल रही थी, चाहे वो कोहरे से हो, चाहे वो ठंड से हो, चाहे वो प्रदूषण से हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोहरा सड़क पर नहीं है और विजिबिलिटी काफी ज्यादा जो है वो नजर आ रही है। लोग सड़कों पर वाहन जो है वो आसानी से चला सकते हैं। फिलहाल गुड़गांव की सड़कों की बात करूं तो हालांकि अगर अगर खुले इलाके में अगर हम जाते हैं तो वहां पर अभी भी कोहरा जो है वो बना हुआ है। नेशनल हाईवे 48 से अगर हम सोहना की तरफ जाते हैं तो वहां पर काफी कोहरा जो है वो दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अब लोगों को इस सर्दी से बचने की बेहद जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि जो इस समय सुबह सुबह की जो ठंडी हवाएं हैं उनसे लोग बचें, क्योंकि सुबह लोग सैर करने के लिए जो पार्कों में जाते हैं
ये ठंडी हवाएं उनको परेशान कर सकती है, उनके शरीर में बीमारियां जी। ला सकती हैं, और खासकर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, अस्थमा वाले पेशेंट हो, दिल के मरीज हों, उनके लिए फिलहाल सुबह की सैर जो है वो करने से बचें, और अगर जरूरी हो तो वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि अब डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें जो इस समय हवा है, यदि प्रदूषण का कण उनके शरीर में जाता है तो उनको बीमारियां भी पड़ सकती हैं। फिलहाल लोग सर्दी से बचने के लिए जैकेट का सहारा ले रहे हैं, टोपी का सहारा ले रहे हैं, मफलर का सहारा ले रहे हैं, स्वेटर का सहारा ले रहे हैं, और अलाप और हीटर का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इस समय जो खुले आसमान में सोने वाले जो लोग हैं उनके लिए हालांकि रैन बसेरों की व्यवस्था जरूर की गई है। गुड़गांव में 10 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें 4 स्थायी रैन बसेरे हैं, 6 पोटा कैबिन रैन बसेरे हैं, जिसमें लगभग स्थायी रैन बसेरे में 60 से 70 लोगों के रुकने की जी। व्यवस्था है, जबकि पोटा कैबिन में 10 लोग जो है वहां रुक सकते हैं। उनके लिए जी, रजाई जी हो या गुलशन, गद्दे हो। बिल्कुल जी। बने रहिए हमारे साथ। अनिल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। अनिल, गाजियाबाद के बारे में बताइए, इस वक्त क्या हालात है ठंड को लेकर, फॉग को लेकर? लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है आने जाने में कहीं पे भी। इस वक्त गाजियाबाद में किस तरीके का माहौल है, हमें बताइए। देखिए, कह सकते हैं गाजियाबाद इस वक्त जो है जो जनता है वो कहीं ना कहीं ट्रिपल अटैक झेल रही है। एक तरफ बढ़ता पोल्यूशन, वहीं कोहरा और जो है शीत लहर जिस तरीके से बढ़ रही है उससे लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं, जैसे कि जो लोग बसेस में यात्रा करते हैं या रेल में यात्रा करते हैं, तो उनके लिए तमाम ऐसे कदम अब उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये पता लग रहा था जैसे ही वो अपनी यात्रा करने जा रहे थे तो कई कई घंटे उनको जैसे ही अनाउंसमेंट हो रहा था कि आपकी जो बस है वो आज कैंसिल कर दी गई है, इस तरीके का अनाउंसमेंट जब हुए तो लोग बेहद परेशान नजर आए। हालांकि ये कदम जो है जो परिवहन विभाग है उनकी तरफ से यात्रियों के लिए ही उठाया गया है। दरअसल साफ तौर पर ये गाइडलाइन आ गई है, परिवहन निगम की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है जो भी ड्राइवर यदि बस को चलाएगा या सवारी को लेकर जाएगा तो उनको साफ तौर पर उसके टेस्ट उसको कराने होंगे, जिसमें कि टेस्ट कौन कौन से, अल्कोहल का टेस्ट होगा और साथ ही उसका पहले का जो हिस्ट्री है या उस पर कोई केस तो नहीं है या कोई उसने कोई ओवर स्पीड का कोई उल्लंघन तो नहीं किया, इस तरीके का टेस्ट पहले करवाना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही उसको बस ले जाने की परमिशन दी जाएगी। तो ऐसे कदम जो उठाए गए हैं, क्योंकि घना कोहरा है, धुंध है, इसको लेकर जो ये कदम उठा लिया गया है, तो ऐसे ही ठोस कदम है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से भी तमाम गाइडलाइन जारी की गई हैं, क्योंकि गाजियाबाद में घना कोहरा भी है और साथ ही शीतलहर भी, और साथ ही पोल्यूशन का जो स्तर है वो भी बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिसको लेकर लोगों को एडवाइजरी दी जा रही है, उनको सलाह दी जा रही है कि घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, और निकल भी रहे तो मास्क का इस्तेमाल करें, और अन्यथा घर पर ही रहें, जरूरी काम हो तो ही घर से निकला जाए। ये इस तरीके की हिदायत जो है लोगों को दी जा रही है। वहीं लगातार जिस तरीके से सर्दी, खांसी, जुकाम और दमे के जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं उसके लिए जो ओपीडी है वो भी एक्स्ट्रा चलाने की बात अब कही गई है। जो ओपीडी 30% चलाई जा रही थी वो अब 60 से 70% तक ओपीडी बढ़ाई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं डॉक्टर्स को अलर्ट रहने के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई मरीज अपनी समस्या को लेकर अस्पताल में आता है तो उसको सबसे पहले इलाज दिया जाए। जी अनिल, बिल्कुल. I would like to thank all of my colleagues for joining me. Brian Thomas joined us from Delhi, Ali Khan from Noida, Gulshan Grover from Gurugram and Anil Chaudhary from Ghaziabad. Thank you for taking us through the latest updates from those locations, but we'll be slipping into a very short break. We'll be right back.